مسیح میں آپ سب کو اسلام. خدا نور ہے. جی میرے عزیزوں، میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 5 آیت. خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. آمین. جی میرے عزیزوں، نور کا مطلب ہے روشنی، راست بازی، پاکیزگی. اور میرے عزیزوں، دن جو ہے وہ خدا کو شو کرتا ہے، اور جو رات ہے وہ شیطان کو شو کرتی ہے. اسی طرح خدا نور ہے اور وہ راست بازی کو شو کرتا ہے. تاریکی جو ہے وہ ناراستی کو شو کرتی ہے. تاریکی جو ہے وہ گناہ کو شو کرتی ہے. دن اور جو روشنی ہے وہ خدا کی پاکیزگی کو شو کرتی ہے. خدا جو ہے وہ نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. جی میرے عزیزوں، خدا جو ہے وہ مکمل روشنی ہے اور اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں ہے. یعنی کہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ روشنی کو ظاہر کرتا ہے. اور جو تاریکی ہے وہ ناراستی کو شو کرتی ہے، یعنی جو کہ رات ہے وہ شیطان کو شو کرتی ہے. اور شیطان جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو مختلف ارادوں سے، مختلف ایسے کاموں سے گناہ میں پھنسا دیتا ہے جو تاریکی کو شو کرتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی 4-5 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے. جی میرے عزیزوں، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ انسانوں میں زندگی پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ ان کو کنگڈم آف گاڈ میں لے کر جانا چاہتا ہے، جہاں پر ناراستی نہیں، جہاں پر کوئی گناہ نہیں، جہاں پر کوئی بدی نہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسی لائف جئیں، ہم ایسی زندگی کو حاصل کریں. لیکن جو لوگ خدا سے دور ہیں، جو خدا کو قبول نہیں کرتے، وہ تاریکی کو قبول کرتے ہیں، وہ اپنے جسموں سے بدی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ تاریکی میں رہتے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جو انہیں خدا سے دور لے جاتے ہیں اور جو خدا کے ناپسندیدہ ہیں. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم تاریکی میں رہیں. خدا چاہتا ہے کہ جس طرح خدا نور ہے اور نور جو ہے وہ تاریکی میں چمکتا ہے، اسی طرح ہمارے اندر بھی خدا کی روشنی ہو، خدا کا عکس ہو، تاکہ ہم بھی دنیا میں اسی طرح چمکیں، اپنی روشنی کو پھیلائیں جس طرح ہمارے خدا نے اور یسوع المسیح نے اپنی روشنی کو دنیا میں پھیلایا. اسی طرح میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 20-21 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا کے کاموں پر ملامت کی جائے. باپ جو ہے وہ نیکوکار ہے، باپ جو ہے وہ پاکیزگی ہے، باپ جو ہے وہ راست بازی ہے. ہمارا باپ چاہتا ہے کہ ہم راست باز بنیں، ہم نیکوکار بنیں، ہم پاکیزگی میں رہیں، ہم اپنی زندگی کو پاکیزگی میں گزاریں اور خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، اس کے آئین پر چلیں، تاکہ ہم اس لائف کو حاصل کر سکیں، اس زندگی کو حاصل کر سکیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور جو نور میں چلنے سے ملتی ہے. جی میرے عزیزوں، اسی طرح میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل، اس کا 8 باب، اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. آمین. جی میرے عزیزوں، یہاں پر خود خداوند یسوع المسیح ناصری وعدہ کرتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں. کیونکہ جب آپ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں حقیقی نور ہوں، میں دنیا کا نور ہوں.
जी मेरे अजीज़ों, और जो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करता है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पर चलता है, वो ही अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया का नूर हासिल करेगा, दुनिया की रोशनी हासिल करेगा। क्योंकि जब हम मसीह के रास्तों पर चलेंगे, जिस तरह मसीह ने पूरी कामलियत से अपनी रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया, उसी तरह हम भी उसके बेटे बेटियां बनकर उसी का जो अक्स है, उसकी जो रोशनी है, उसका जो नूर है, अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर कर सकते हैं, क्योंकि वो कामिल खुदा है, वो नूर है, वो उसमें तारीकी नहीं। और इसी तरह मेरे साथ अमाल निकालिएगा 26 बाप उसकी 32 अमाल आयत में लिखा है कि सुबह को दुख उठाना ज़रूर है और सबसे पहले वही मुर्दों में से ज़िंदा होकर उस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तहार देगा। यस मेरे अजीज़ों, अब जानते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी ने हमारी खातिर सलीब पर कितने दुख सहे, कितना दुख उठाया। जब यीशु अल मसीह नासरी को सलीब दी जा रही थी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने गैर कौमों को भी अपनी रोशनी से, अपने नूर से मनव्वर किया है। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक कौम के लिए आया हूँ, बल्कि उसने कहा है कि मैं सब कौमों के लिए, सारी दुनिया के लिए आया हूँ, और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो नजात को हासिल करता है, वो उस नूर को, उस ज़िंदगी को हासिल करता है जो यीशु मसीह की ज़िंदगी है, जो पाकीज़गी है, जो नजात है, जो हमारे लिए मसीह का एक दिया गया नमूना है। जब हम उस रास्ते पर चलते हैं, तो मेरे अजीज़ों, वो ज़िंदा होकर मुर्दों में से हमारे लिए ऐलान करता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और जब हम उस पर ईमान रखते हैं, तो वही नजात हमें देता है, वही नूर हमें देता है, ताकि हम लायक तौर से उस नूर में चलकर उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा करंथियों का दूसरा खत, उसका 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तरीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा की पहचान का नूर मसीह के चेहरे से जलवागर हो। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, इसलिए खुदा ही है जिसने फरमाया कि तरीकी में से नूर चमके। जी मेरे अजीज़ों, दुनिया अंधेरे में थी, दुनिया गुनाह में गुम हो चुकी थी, उसने अपनी हो चुकी थी, दुनिया पर अंधेरा था, दुनिया पर तारीकी छा चुकी थी। फिर खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, ताकि हम खुदा की पहचान का नूर जो है वो यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। जी मेरे अजीज़ों, बेटे ने बड़ी कामलियत के साथ अपने बाप के नूर को, बाप की रोशनी को अपने चेहरे से ज़ाहिर किया, उसके कामों से, उसकी हिकमत से, उसकी दानाई से आज हम देखते हैं कि उसने बाप के हुक्मों को माना और रोशनी को कबूल किया, और उसने तारीकी को रद्द किया, क्योंकि आप जानते हैं तारीकी जो है वो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती है, और जो रोशनी है वो हमें ज़िंदगी की तरफ लेकर जाती है। और यीशु मसीह जो है, उन यीशु मसीह के चेहरे से बाप का नूर जो है वो ज़ाहिर होता है, जलवागर होता है, और जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो वही नूर हमारी ज़िंदगियों से भी जलवागर होता है। इसी तरह हम उसके बेटे और बेटियां मेरे साथ निकालिएगा मेरे अजीज़ों, इसी तरह का खत 5 बाब उसकी 8-9 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम पहले तरीकी थे, मगर अब खुदावन में नूर हो, नूर के फरजंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, पालूस रसूल कहते हैं, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे। जी मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले इस दुनिया में तारीकी थी, इस दुनिया में रोशनी नहीं थी, लेकिन जब खुदा का बेटा यीशु अल मसीह नासरी आया, तो उसने हमें अपने फर्जंद बनाया, और जब हम उसके फर्जंद बने, तो मेरे अजीज़ों, नूर का जो फल है, नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। मसीह का जो फल है वो हमें मौत की तरफ लेकर जाता है, और जो रास्तबाजी का फल है वो हमें ज़िंदगी की तरफ लेकर चलता है, यानी कि रोशनी की तरफ, मसीह के नूर की तरफ, खुदा के नूर की तरफ। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों
का ख़त 5 बाब उसकी 13 और 14 आयत का जब हम मतालिया करते हैं तो उसमें लिखा है, और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से ज़ाहिर होती है, क्योंकि जो कुछ ज़ाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जी मेरे अजीज़ों, मुर्दा उन इंसानों को कहा गया है जो गुनाह में हैं, जो गुनाह करते हैं, जो तारीकी में चलते हैं, उनको मुर्दा कहा गया है। जिनको खुदा के अहकामात का पता नहीं है, जो खुदा के कलाम को ना पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना उस पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को मुर्दा कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि तू जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आज वक्त है कि हमें उस नींद से, उस तारीकी से जाग जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम नूर को हासिल करें। मसीह का नूर फिर जो है, जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे, अपनी नींद से जाग उठेंगे, तो मसीह का नूर हमारे चेहरों पर चमकेगा। आप अगर चाहते हैं कि खुदा का जो नूर है, मसीह का जो नूर है, वो हमारे चेहरों पर जलवागर हो, तो हमें अपनी नींद को छोड़ना है, हमें मुर्दों में से जी उठना है। जब हम जी उठेंगे, अपनी नींद को छोड़ेंगे, तो खुदा का नूर हम पर चमकेगा। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा कुलसियों का ख़त, उसका 1 बाब उसकी 12 और 13 आयत और में बाप लिखा का है, और शुक्र बाप करते का रहो जिसने हमको इसलाह किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। उसी ने हमको तरीकी के कब्ज़ा से छुड़ाकर अपने अजीज़ बेटे की बादशाही में दाखिल किया। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, खुदा की बादशाही, किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही, अगर हम तरीकी को छोड़ते हैं, गुनाह को छोड़ते हैं, तो फिर खुदा जो है, जो बेटा है, वो हमें उसी बादशाही में दाखिल करेगा जो खुदा ने मुकद्दसों के लिए मेरास का हिस्सा रख छोड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि वो मेरास, वो दौलत, वो किंगडम ऑफ गॉड आपको मिले, तो हमने तरीकी को छोड़ना है, तरीकी के कब्ज़ा में से अपने आप को आज़ाद करना है, ताकि हम एटर्नल लाइफ को, हमेशा की ज़िंदगी को और नूर को हासिल कर सकें। और नूर खुदा है, और नूर मसीह है। जी मेरे अजीज़ों, अगर हम तरीकी को छोड़ेंगे तो ही हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे और किंगडम ऑफ गॉड के वारिस होंगे। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा का पहला ख़त, उसका 5 बाब 5 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद हो, हम न रात के हैं न तरीकी के। जी मेरे अजीज़ों, हम रात के और ना तरीकी के, क्योंकि आप जानते हैं रात जो है वो शैतान को शो करती है, और जो तारीकी है वो गुनाह को शो करती है। इसलिए हम जो हैं, हमने शैतान के बच्चे नहीं बनना, हमने गुनाह नहीं करना, हमने तरीकी को छोड़ना है, हमने गुनाह को छोड़ना है और रोशनी में दाखिल होना है और किंगडम ऑफ गॉड को हासिल करना है। यानी कि खुदा नूर है और नूर को हासिल करना है। मसीह यीशु भी नूर है, हमने उसके पैरोकार बनकर उसके रास्तों पर चलना है। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा थमोथियस, उसका 6 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, और ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहेगी। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, बका सिर्फ उसी की है जो नूर में रहता है, यानी जो खुदा में वफादार रहता है, जो यीशु मसीह की पैरवी करता है, वो ही इस भेद को, इस नूर को हासिल कर सकता है। वरना जो लोग खुदा से दूर हैं, जो मसीह को नहीं जानते या तरीकी में रहते हैं, सोए रहते हैं, मुर्दा बने रहते हैं, वो वहाँ तक किसी इंसान की कोई रसाई नहीं। लेकिन जो जाग उठते हैं और जो तारीकी को ख़त्म कर देते हैं, जो रोशनी में आ जाते हैं, जो नूर में आ जाते हैं, उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहेगी। जिस तरह मेरा और आपका मसीह अब तक रहेगा, हमेशा तक रहेगा, जब तक ये दुनिया है, उस इंसान की भी इज्जत और जो रसाई है तब तक रहेगी। जी मेरे अजीज़ों, आज हमने तरीकी को छोड़ना है, बदी को छोड़ना है और दिन में आना है, यानी कि नूर को हासिल करना है और खुदा की सच्चाई को अपनाना है,
खुदा की रोशनी को अपनाना है। जब हम ऐसा करेंगे, गुनाह को छोड़ेंगे, तरीकी को छोड़ेंगे, तो फिर हम नूर में दाखिल होंगे, खुदा की रोशनी में दाखिल होंगे और जो मेरास उसने हमारे लिए छोड़ी है फिर ही हम उस मेरास को हासिल करते हैं। आज जब हम सोए रहते हैं, मुर्दा हालत में रहते हैं, तो खुदा भी हमसे दूर हो जाता है। लेकिन जब हम रोशनी में आ जाते हैं, दिन में आ जाते हैं, खुदा के नूर को हासिल कर लेते हैं, तो हम किंगडम ऑफ गॉड को हासिल कर लेते हैं, खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं जो उसने हमारे लिए मेरास रख छोड़ी है। फिर ही हम उसके वारिस हैं और मेरे अजीज़ों फिर ही हम इज़्ज़त पा सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं जो यीशु मसीह पर ईमान रखने के बग़ैर बाप से मिल सके। रसाई अगर है तो इसी में है कि हम खुदा यीशु मसीह को अपना रात निजात को दहींदा छोड़कर जाने। हमने दिन में दाखिल होना है, तरीकी को छोड़कर हमने नूर में दाखिल होना है। फिर हमारी बका है, फिर हमारी रसाई है, फिर रासबाजी है, फिर ऐसे ऐसे फल और ऐसी मीरास, ऐसी बरकतें हमें खुदा से मिलेंगी जो हमें नूर में लेकर चलेंगे और नूर हमारी ज़िंदगी होगा, क्योंकि नूर में रास्ती है और तरीकी में नारास्ती है। जो नूर को हासिल करता है वो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करता है और जो नाराज़गी को हासिल करता है वो उस ज़िंदगी को हासिल करता है जो आग और गंधक से बनी हुई है। तो जी मेरे अजीज़ों, आज आप चाहते हैं कि हम किंगडम ऑफ गॉड को और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें, तो मसीह को अपना नजात दहिंदा और मसीह को अपना नूर जानकर कबूल करें, क्योंकि वही नूर हमें ज़िंदगी दे सकता है, वही नूर हमें बका दे सकता है, वही नूर हमें रास्तबाजी पर लेकर चल सकता है, वही नूर हमें ज़िंदगी दे सकता है और वही नूर हमें तमाम बरकत दे। आए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।